Hello everyone, I am Medha Anand. I have secured rank 13 in this year's Civil Service Examination 2023 and I would like to express my heartfelt gratitude to MK Yadav sir, Divya ma'am and Team IS Hub. I was a part of their QEP program and also in the past years I was a part of their interview program. But I think the main thing which helped me in getting a good score in mains was the QEP program. मेरा जीएस का स्कोर इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम अराउंड 397 टू 463. उसके अलावा एक बार मेरा अराउंड 360 भी जीएस का स्कोर रहा है, तो ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट था मेरे लिए. और कंसिडरिंग कि मैं उसको अपना फोटे नहीं समझती हूँ, तो वो इम्प्रूव करना अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक वो था. बट आई थिंक कि क्यूईपी का जो इस्तेमाल मैंने किया है वो पहली बार इसी मीन्स में किया है. और मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि वो पहली बार में इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे दे गया. इससे पहले भी मैंने क्यूईपी ज्वाइन किया था, बट क्योंकि एक साल मेरा प्री नहीं निकला और एक साल मैंने एग्ज़ाम भरा ही नहीं, तो मैं उसको पढ़ती थी, प्रैक्टिस करती थी, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे अभी एक मौके की ज़रूरत थी और वो मौका इसी बार मुझे मिला. तो मुझे लगता है कि जितने भी सर ने डायग्राम्स और फैक्ट्स और ये सब बताए थे, वो कुछ समय के उसमें मैंने अपने खून में भर लिया था कि इसको ऐसे ही लिखना है. So here I would specifically talk about the QEP program that was there. So in the QEP booklet, we have the PYQs. Through these, I think a child can understand what all topics are coming in which all years, and that will definitely ensure them to have a greater edge than the other parts. With the help of the fact sheet, you can ensure that you have crisp points on many of the topics. For example, in healthcare, you can make sub-points. Some facts for women's health, some for kids' health, some for maybe diabetics and other non-communicable diseases. Whatever goes on the trend, you can ensure that you have facts for all of them and you can use them wisely at one fact at many different places. Similar was the case with theme-wise keywords. I still remember Big but Poor Dilemma. Such were the keywords which will enhance the presentation of your answers. It will give you an edge over what others are writing and maybe not bore the examiner, because he or she is checking many copies in one day and you have to prove it to him or her that you have written better, you have practiced well. While I say this, I'll be conscious of the fact that you need to write a lot of answers. Sir helped me in writing a lot of answers, because unless you don't do a lot of answer writing practice, these things won't get reflected in your system. And until they are not in your system, you won't be able to reflect them in the answer copies, because there you have just 8 minutes, 12 minutes to write the same. Similar is the case with case studies and best practices. Sir actually gave a very holistic coverage of the same. I could not remember all of these. So I had maybe taken out 5 or 6, for example, in case of internal security or some good model of healthcare that was going on, maybe around the world or here. I remember there was this Aadhaar card ka verification system, which was nice, and it was a similar concept as was adopted in some other country. तो आप ये याद कर लीजिए, you can ensure कि आप उसको use कर पाएँ. From the speeches, this is another section which is there. So here you will get some good terms. So, for example, Amrit Kal. So these will enhance your outlook towards the exam जिसके लिए आप ये questions लिख रहे हैं. जब आपको उसी सिस्टम में जाना है, तो आपको उस सिस्टम की तरह अलाइन होना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि अमृतकाल के लिए हम क्या कर रहे हैं. तो हम ये कर रहे हैं और आप उसको एक वर्चुअस साइकिल में दिखा सकते हैं कि आज अगर हम हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करेंगे, तो कल हमारा ये आउटकम होगा, जिसकी वजह से एजुकेशन, स्किल, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बेटर होगा. तो सेम इसमें है. जो नेक्स्ट टॉपिक सर यूजुअली कवर करते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि PYQs में क्या ज़्यादा आया है. तो जो आया है उसके सेक्टर स्पेसिफिक पॉइंट्स, केसेस, कॉजेज, इम्प्लीमेंटेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस. इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, अगर इस पे ऑल्टरनेट साल पे क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, उसका एक डायमेंशन आएगा. सरकार क्या कर रही है अब उसको सही करने के लिए, और क्या करना चाहिए, पहले क्या दिक्कतें हुई हैं, कैसे इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी पीछे रह जा रही है. तो जब आप इसको मल्टीपल एस्पेक्ट से देख लेंगे, ये ना सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप कोई और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अमृतकाल के लिए क्या करें, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम कर दें. तो ऐसे आप लिंक करते हुए आगे चल सकते हैं.
The video classes of QEP were very, very helpful. I remember since I was a working professional, I used to get sometimes bored and sometimes didn't have much time. So that time I used to just open up sir's classes, and maybe while eating my food or maybe at 12 at night, I used to just open the classes and make notes of it. बहुत लोग कहते हैं कि आप सिर्फ उसके हैंडआउट से पढ़ लीजिए, बट मेरा मानना है कि जब आप एक क्लास अटेंड करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि एक ही चीज़ को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप खुद ब्रेनस्टॉर्म भी करते हैं कि अच्छा इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कीवर्ड है थ्रेट मल्टीप्लायर, सर ने बता दिया कि वो साइबर में यूज़ हो सकता है। उसके बाद सर आपको मौका देते हैं कि आप सोचिए इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप एक बार इस बारे में सोच लेते हैं तो आपके सिस्टम में वो आ जाता है कि हाँ, मैं साइबर में तो यूज़ कर ही सकती हूँ, इसके अलावा अगर टेररिज्म का केस है तो मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ। मे बी इसका मैं एक एंटोनिम बना के एक अच्छे सेक्टर में पॉजिटिवली यूज़ कर सकती हूँ कि एजुकेशन में हमें थ्रेट मल्टीप्लायर्स कम करने हैं, या कुछ भी इस तरीके का। तो जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि एक ही चीज़ को आप मल्टीपल जगह कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल फैक्ट्स के केसेस में है। जैसे अगर आपने ग्रोथ या इकोनॉमिक्स के कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स याद कर लिए, इन्फ्लेशन याद कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ग्रोथ, इसके स्टैटिस्टिक्स याद कर लिए। अब जब सर एक क्वेश्चन आपको देंगे, जो सर जिसको लिखने का भी क्लास में टाइम देते हैं, जिसमें सर ने कहा कि आप इंडिया को 2050 में कहाँ देखते हैं? तो आप उसमें ये सारे डेटा पॉइंट्स यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपने यूज़ नहीं किए तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपके पास ये इतना अच्छा एक डेटा का सेट था, और वो आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मार्क्स रिवॉर्ड करें तो आप उसमें लिखिए कि मैं इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे वहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी कम देखना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे एक ही डेटा पॉइंट को आपने मल्टीपल जगह यूज़ किया और उससे अपने मार्क्स फेच किए। इसके अलावा जो कंक्लूजन्स होते हैं उस पे भी सर का बहुत एम्फेसिस होता है। सर कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चंस में हम लोग अलग-अलग तरीके के कंक्लूजन लिखें। मेरा 2019 के अटेम्प्ट में मुझे याद है कि जीएस 3 में मैं ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो गई थी और मैंने सब में एसडीजी लिख दिए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मेरे कंक्लूजन में एसडीजी थे, जो कभी-कभी रेलेवेंट भी होते थे, कभी-कभी नहीं भी उतने रेलेवेंट होते थे। अब इससे एक एग्जामिनर में भी थोड़ा इरिटेट हो सकता है। आप खुद इसे अपने पे लीजिए तो आपको लगेगा कि क्यों ये बच्चा हर जगह एसडीजी लिख रहा है। बट अगर एक जगह आपने अमृतकाल का मेंशन किया, एक जगह आपने एसडीजी का मेंशन किया, एक जगह आपने मे बी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट लगा दी कि देखिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि हम उस साल में यहाँ होंगे, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अलग-अलग क्वेश्चंस में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 20 क्वेश्चंस में आप बहुत इनोवेटिव कंक्लूजन्स लिख देंगे, बट अगर ये 15 टू 16 क्वेश्चंस में भी हो गया तो आपका काम हो गया है और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। इसके लिए भी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पेन्स की इंक खत्म करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं उतना रेडी नहीं हूँ और मैं एक टाइम पे अचानक से लिख दूँगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। जब सर आपको 8 मिनट 10 मिनट दे रहे हैं, क्लास में कह रहे हैं कि आप आंसर लिखिए, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, वहीं वहीं उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में कोई अच्छा वो ऑपर्च्यून टाइम कभी नहीं आएगा। वही ऑपर्च्यून टाइम में आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। उसमें लिखिए, कैसा भी आंसर हो, 3-4 आइटरेशंस के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जितने भी सर आपको सिंप्लीफाई करके चीज़ें दे रहे हैं, आप उसका यूटिलाइज़ेशन करिए। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने अपना एक काम डेलीगेट कर दिया है। कोई आपके लिए एक काम सिंप्लीफाई करके ला रहा है, योजना उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा है, कुरुक्षेत्र को सिंप्लीफाई कर दे रहा है, आप बस उसे यूज़ कीजिए। अगर सवाल है कि रूरल इकोनॉमी कैसे बेटर करें, तो आप एसएचजी, वुमेन का रोल, उसमें एक डायग्राम, उसमें एक चार्ट, उसमें सर बताते थे, जो सर ने अगेन क्लास में ही बताया है कि आप एक बॉक्स बना के उसमें डेटा शीट लिख दीजिए, डेटा फैक्ट्स लिख दीजिए या फिर डेटा फाइल लिख दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लिख दीजिए उसको, अगर आपको लगता है आप मैप नहीं बना पा रहे हैं इसमें, आप डेटा फाइल लिख के 3-4 उसमें डेटा सेट लिख दीजिए। वो प्रेज़ेंटेबल भी बनाएँगे और मोनोटनी भी ब्रेक करेंगे। और ये सेम पॉसिबल हुआ जब मैंने टॉपर्स की पीवाईक्यू की जो बुक सर ने रिलीज़ की, उसमें मैंने देखा कि ये चीज़ डूएबल है। जैसे जीएस 2 में गौरव बुदानिया सर, आकृति मैम और शुभम सर के अलावा रैंक 70 सर आदित्य शर्मा सर ने भी जीएस 3 में कंट्रीब्यूट किया। इस बुकलेट का मुझे फ़ायदा ये महसूस हुआ कि इसमें आपको अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग के अनुसार एक आंसर का फ्लो मिल जाएगा। यूजुअली मुझे लगता है 2 एक मेजर आंसर राइटिंग के फ्लोज़ होते हैं। एक में आप बहुत बड़ा-बड़ा लिख के, कम लिख के, स्पेसिंग छोड़ के और उसमें सिर्फ़ क्रिस्प पॉइंट्स लिखते हैं। एक ये आंसर राइटिंग होता है जो आपका इन्हेरेंटली आपका खुद का होता है। दूसरा होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं
और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको इस टॉपर्स के आंसर से पता चलता है कि दोनों चीज़ें काम कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही चीज़ सक्सेसफुल हो। आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आप कम वर्ड्स लिख पाते हैं 8 मिनट में, तो आप कोशिश करिए कि उसका जो वैल्यू एनरिचमेंट हो वो बहुत ज़्यादा हो। आप जो लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट हो और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपने कवर की हो। जबकि अगर आप ज़्यादा लिखने वालों में से हैं तो आप इंश्योर करिए कि आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हो और आप उस हिसाब से कंटिन्यू करें। इस बुकलेट को जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि दोनों ही एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं और आप उसी हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मेरे लिए क्या वर्क करेगा। क्या मैं इतना ज़्यादा लिख सकती हूँ 8 मिनट में? अगर लिख सकते हैं तो हम वैसे चलेंगे। सिमिलर वेज़ में अगर इंट्रोडक्शन के बाद और बॉडी से पहले आपको अगर एक छोटा-सा माइक्रो डायग्राम देना है, उसका यूज़ इसमें भरपूर किया गया है। तो जिस समय आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में या फिर आप कुछ और कर रहे हैं या आप खुद पीवाईक्यू नहीं लिखना चाहते हैं, आप गो थ्रू कर लीजिए। आपको लगेगा कि अच्छा ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक आध ऐसा पॉइंट होगा जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इनोवेटिव था, मैं तो ये मैंने इस डायमेंशन में सोचा ही नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी लगे कि इससे अच्छा तो मैं लिख सकता था या लिख सकती थी, देन वेल एंड गुड, आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। जो भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करती है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और मैंने इसको थॉरली पढ़ा था, मैंने इसको अपनी एकेडमी में बाय पोस्ट मंगवाया था और इसको पाके मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि दिल्ली से दूर रह के जब आपको मटेरियल मिलता है तो आपको लगता है कि अब तो हो जाएगा। और इसी में मैं हाइलाइट कर लेती थी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता था। कभी-कभी कुछ ऐसा रहता था जो मुझे लगता था कि एक मेंटल नोट इसको करने की ज़रूरत है, कि ऐसा करने से मुझे आगे बहुत फ़ायदा होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ दीज़ पीपल। उनकी वजह से मुझे यकीन हुआ कि ये डूएबल है और मैंने उसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की। वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ बिग थैंक यू टू टीम आईएएस हब। उन्होंने मेरी जर्नी में हेल्प किया कि आई एम फाइनली स्टैंडिंग हियर एंड थैंक यू सो मच।